Jai Hind to all. Myself Dr. Nilesh Kumar Gupta. I am working as a professor at Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad in Department of EC. So, I am teaching you the subject of information theory and coding. This subject is in AKTU syllabus of 7th semester. Its AKTU code is KEC 075. Lastly, I told you about the channel capacity. What is the meaning of channel capacity? It is related with the ability of a channel for reliable communication into a communication system. चैनल की ऐसी एबिलिटी, कैपेसिटी मतलब क्या, उसकी एबिलिटी, सो दैट ही कंप्लीट देयर टास्क. सो फर्दर in this lecture channel capacity part 2, I will tell you about the channel capacity for different and various binary channels. बाइनरी चैनल्स की अलग अलग बाइनरी चैनल्स की चैनल कैपेसिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा. ओके, सो दीज विल बी माय कंटेंट्स हियर. एट फर्स्ट अगेन आई विल रिकॉल अबाउट द चैनल कैपेसिटी कि चैनल कैपेसिटी क्या होती है. नेक्स्ट, वेरियस बाइनरी चैनल्स अवेलेबल, कौन कौन से अलग अलग हमारे बाइनरी चैनल्स होते हैं. देन चैनल कैपेसिटी की प्रॉपर्टीज, देन चैनल कोडिंग थ्योरम. सो स्टेप बाय स्टेप आई विल कवर these contents in this lecture regarding the channel capacity of a binary channel. Okay, so you can learn here. Now this is again our basic diagram that also I told in last lecture. The basic diagram of communication system in terms of binary channels. It means if you are you want to transmit this W message from the transmitter, okay, to the receiver, so it will be exactly same. Communication system का फंडा क्या है या मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये W जो पाल लिखा है मैंने, दोनों आपस में क्या हो, एग्जैक्टली एक जैसे, और बीच में प्रोसेस है हमारी सम एनकोडर, डिकोडर एंड आवर चैनल. And channel is recognized and identifies and put here in terms of channel matrix or channel probability matrix. That is always कौन सा होता है, P y by x. This you have to keep in your mind कि हमारा जो चैनल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा P y by x होता है. Always remember this one. Don't be confused. Always remember that our channel matrix will be P y by x. Okay. It means the probability of receiver when x is transmitted. Always this will be there. Okay. That you have to keep in your mind. Now at first we consider binary symmetric channel कि binary symmetric channel में क्या होता है और कैसे निकालते हैं. तो binary symmetric channel क्या होता था हमारा कि हमने इस तरह से ये दिस इज एक्स ट्रांसमीटर फॉर एंड दिस वाई फॉर रिसीवर. सो इफ 0 you are transmitting here and you are getting the 0, okay, we are considering this probability 1 minus p. Similarly, if 1 you are transmitting and you are getting the 1 here, so probability 1 minus p, and its complement like p, it we are considering the probability of. So this is our binary symmetric channel कि error जब मिलेगी whenever you are communicating transmitting 0 but you are getting the 1, when you are transmitting 1 but you are getting the 0. So this is the case of binary symmetric channel and it is the simplest and general case of binary channel. Okay, that you have to keep in your mind always. So यदि मैंने इसको ऐसा दिया तो क्या होगा भैया, चैनल मैट्रिक्स कैसा बनेगा हमारा, P y by x इज इक्वल टू, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आप लोगों को, इट विल बी 2 क्रॉस 2 का होगा. क्यों, 2 ट्रांसमीटर हैं और 2 रिसीवर हैं. 4 एलिमेंट्स विल बी देयर, 1 1 1 2 2 1 2 2. सो 1 1 क्या होगा, 1 माइनस P,
1 2 क्या होगा p, 2 1 क्या होगा p, और 2 2 क्या होगा 1 माइनस p. यू कैन सी फ्रॉम दिस चैनल डायग्राम. ये क्या है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड चैनल डायग्राम ऑफ अ चैनल. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड आवर चैनल मैट्रिक्स. ओके, सो दिस इज आवर बाइनरी सिमेट्रिक चैनल. नाउ सो नाउ व्हाट, अगली स्टेप क्या है कि इस बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की मुझको चैनल कैपेसिटी निकाल, जो मैंने यहाँ निकाली थी इन शॉर्ट, बट whenever you want to prove this one, so how you can prove that I will tell you. So this is the simple expression that also I told in last lecture कि the channel capacity will be C is equal to 1 minus H of P bits. Okay, so इसको प्रूफ करेंगे हम लोग. अब देखते हैं क्या होगा. So चैनल मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, हमने बताया था अभी, दिस अभी लिखा मैंने 1 माइनस P, 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 1 माइनस P. डायग्राम बनाया था ना मैंने, दिस वन ऐसा बनाया था मैंने, दिस इज फ्रॉम 0, दिस इज फॉर 1 0 1, दिस 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 दिस. ओके, ये अभी बनाया था हमने थोड़ी देर पहले. सो ये क्या था हमारा, दिस विल बी P, दिस विल बी P, दिस विल बी 1 माइनस P एंड दिस विल बी 1 माइनस P. दिस इज फॉर ट्रांसमीटर X एंड दिस इज फॉर रिसीवर. सो ये हमारा क्या होगा, चैनल मैट्रिक्स. नाउ दिस इज सिमेट्रिक चैनल. सिमेट्रिक चैनल का जनरली मतलब होता है कि यदि किसी चैनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक चैनल मतलब हम किसी भी चैनल को उसके चैनल मैट्रिक्स से रिकॉग्नाइज करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना. इफ आई हैव टू रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई एनी चैनल, सो दैट शुड बी रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाइड बाय ओनली इट्स चैनल मैट्रिक्स, ये हमेशा रखना. तो यदि किसी चैनल मैट्रिक्स की रोज एंड कॉलम्स, उसकी रोज आपस में आइडेंटिकल हो, कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो, तो उसे सिमेट्रिक चैनल कहते हैं. जैसे इसमें देखें आप, हर रो में एक P है और एक 1 माइनस P है, हर कॉलम में एक P है और एक 1, तो दिस इज आवर सिमेट्रिक चैनल. और यू कैन से परम्यूटेशन टू ईच अदर, यू कैन आल्सो से, आई विल टेल यू नेक्स्ट. ओके, ये भी बताऊंगा आगे मैं आपको. तो अब मुझे क्या निकालना, IXY का फॉर्मूला होता है या तो ये 3 होते हैं, तो अभी हमें जरूरत इसकी है, तो हम लिखेंगे HY माइनस HY अपॉन X. अब हमें HY और HY बाय X की वैल्यूज निकालनी है. ठीक, वी नो बाय द बेस फॉर्मूला, बेस फॉर्म क्या होती है, PXY इज इक्वल टू PX इंटू PY बाय X. अब P ऑफ X मतलब ट्रांसमीटर मैसेज, क्या है सिंबल हमारे, दो ही मैसेज 0 या 1. तो एक 0 को मैंने मान लिया, वी कैन राइट 0H अल्फा मैंने ले लिया, और 1 को मैंने लिया 1 माइनस अल्फा. जैसे P लेता हूँ 1 माइनस P लेता हूँ. ये P ऑफ X की बात हो गई, क्योंकि हमें PXY यदि निकालना है. ओके, तो PXY इज इक्वल टू क्या था, बेस तो ना PX इंटू PY बाय X. PY बाय X तो दिया है हमको, और PX नहीं दिया. PX क्या हो गया 0 1 के टर्म में, अल्फा और 1 माइनस अल्फा. तो अब HY बाय X का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, हमें पता है, I12M J12N PXI XY एंड लॉग ऑफ 1 अपॉन PY अपॉन X. तो मुझे PXY भी चाहिए और PY बाय X भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए. PY बाय X तो मेरे पास है, PX भी है, पर PXY नहीं है. PXY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PX, जो PX मैंने कंसीडर यहाँ पे किया नहीं किया, दिस, ठीक, और PY बाय जो मेरे पास है. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट PXY and put into this equation for calculating the mutual information, then channel capacity of a binary symmetric channel. Now PXY is equal to, this is our PX, ये हमारा PX है, बताया था हमने, क्या करा, एक 0 को अल्फा ले लिया, 1 को क्या ले लिया 1 माइनस. तो अल्फा 0 0 1 माइनस, एक अल्फा एक 1 माइनस. ये हो गया PY बाय X. PY बाय X वहाँ लिखा था हमने, याद करो क्या लिखा था, 1 माइनस P 1 माइनस. अब दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पॉसिबल है, तो हमें क्या मिल जाएगा PXY इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन. तो ये हो गया PXY. अब HY बाय X क्या होता है हमारा, HY बाय X क्या होता है, माइनस में लिखूं तो क्या होगा,
इट विल बी समेशन i 1 to, क्या लिया हमने i को, i 1 to m एंड j 1 to n, क्या होता है p x i y j और log ऑफ बेस 2 p, क्या लिखूं, y j अपॉन x i। ठीक, इस तरह से ही होता है कुछ फॉर्मूला हमारा। माइनस में प्लस में लेंगे तो log 1 अपॉन दिस आ जाएगा। तो अब मुझे पी एक्स वाई भी चाहिए, एक्स वाई भी चाहिए, ये भी चाहिए और पी वाई बाई एक्स भी चाहिए, दोनों आ गए वहां पर, पी एक्स वाई भी आ गया और पी वाई बाई एक्स वहां पर है। ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यू हियर एंड कैलकुलेट द एच वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा पी एक्स वाई। तो क्या लेना है मुझे, पी एक्स वाई। पी एक्स वाई कितना है पहला, दिस अल्फा इंटू 1 माइनस पी इंटू लॉग बेस ऑफ 2 पी वाई करेस्पॉन्डिंग पी वाई, करेस्पॉन्डिंग क्या है 1 माइनस पी, माइनस क्योंकि आगे माइनस सब जगह माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है अल्फा, नेक्स्ट क्या है हमारा, हम देखें इसमें तो क्या होगा, दिस लॉग ऑफ पी और यहां पे क्या अल्फा। ओके, नेक्स्ट 1 माइनस अल्फा पी अगेन एंड लॉग ऑफ पी, नेक्स्ट 1 माइनस अल्फा 1 माइनस पी लॉग ऑफ 1 माइनस पी। तो एक टर्म पी एक्स वाई की और लॉग बेस ऑफ किसकी टर्म, पी वाई बाई, फॉर्मूले में लगा दिया मैंने। सिंपली आई एम पुटिंग द वैल्यूज हेयर इन द फॉर्मूला फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी एक्स वाई एंड पी वाई बाई एक्स, ओनली दिस आई एम डूइंग हेयर, कुछ भी नहीं किया मैंने। If you solve this, then you will get this one cancel out, some terms are cancelled out, you will get h y by x is equal to minus p log p minus 1 minus p log of 1 minus p base of 2, हमेशा ध्यान रखो बेस ऑफ क्या रहेगी, हमेशा 2। अब मुझे पता है कि आई एक्स वाई क्या होता है मेरा, एच वाई माइनस एच वाई अपॉन एक्स। सो आई एम पुटिंग द वैल्यू हेयर एच वाई माइनस एच वाई, तो माइनस माइनस प्लस, सब चीजें क्या में जाएंगी हमारी प्लस। This is our mutual information. What I know, the channel capacity क्या होती है, channel capacity for any binary channel will be the maximum of its mutual information, the maximum of its mutual information. So maximum of mutual information, तो इसका मैक्सिमम ले लेंगे हम। एच वाई का मैक्सिमम क्या होगा भैया, the maximum h y क्या होगा 1, so I am putting here 1 plus what p log p 1, so this will be the formula। okay, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, c is equal to, you can also write what जो लिखा था हमने पहले, this 1 minus h of p, वही तो है। यदि आप देखेंगे इसको क्या है, अरे भाई क्या होता था ये, दिस वन, यही तो है p log p plus 1 minus p log। So if in the question the numerical p is given to you, so again you have to put the values of p that is given in the problem and you can calculate its channel capacity. So in this way you can prove also what, channel capacity of what, of what, of binary symmetric channel, and you can also write this one 1 minus h of p. Okay. So this, in this way we can prove the formula for channel capacity of binary symmetric channel. Next we can see for binary eraser channel BEC। कभी कभी क्या होता है, आई एम कम्युनिकेटिंग द 1 फ्रॉम द ट्रांसमीटर 1 और 0, बट आई एम नॉट रिकग्नाइजिंग आइडेंटिफाइंग दैट एट द रिसीवर साइड 1 और 0 विच इनपुट इज रिसीव्ड, हम पता नहीं लगा पाते हैं, वी आर नॉट आइडेंटिफाई, वी आर नॉट रिकग्नाइजिंग ओके कि दैट विच इनपुट वी आर रिसीविंग हियर, वो 1 है 0,
तो ऐसा या तो होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हो गई, वो मिल ही नहीं पा रही हमें, या हमारा जो इनपुट चला था, ट्रांसमिट हुआ था, दैट इज करप्टेड, इरेज हो गया। इसलिए इसका वर्ड यहाँ पे इरेजर, कि कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है, ऐसा आउटपुट भी आएगा दैट वी कंसिडर इरेजर आउटपुट, इरेजर चैनल आउटपुट। इनपुट तो दो ही है हमारे भी 0 और 1, बट आउटपुट 3 हो गए। 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग से BSC में होते थे, और एक आ गया हमारा मान लो अल्फा और इरेजर आउटपुट। इन दिस कंडीशन वी आर नॉट एबल टू डिसाइड whether we are receiving the 0 or 1. So, this is due to the generally loss of information into the system. Okay. तो वही कहलाता है बाइनरी इरेजर चैनल। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ अनदर बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, ये भी बाइनरी सिमेट्रिक चैनल ही है हमारा, इन विच सम बिट्स आर लॉस्ट रादर देन करप्टेड, इज कॉल्ड बाइनरी इरेजर चैनल। इन द बाइनरी इरेजर चैनल, a fraction of the bits that you are communicating from the transmitter are erased, and receiver knows which bits has been erased. ऐसा क्यों होगा? ये तो लॉस से करप्ट हो जाएगा, बट हम बता नहीं पाएंगे कि भैया वो 1 है या 0. The binary erasure channel has 2 inputs and 3 outputs shown in the further in the figure, this figure. So, in this figure you can see here you are having 2 inputs but 3 outputs, ये X transmitter, Y is receiver. So, again this is binary symmetric channel, this is 1 minus alpha, this is 1 minus alpha, okay. But third condition is E, this is the another output, E means eraser output, eraser signal, and it is what we are considering this as a alpha. So, this is the case of binary eraser channel. Now, next we can calculate the channel capacity of this BEC. So, कैसे निकालेंगे? वही C बराबर क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, अगेन मैक्सिमम HY माइनस दिस, और HY बाय X मतलब चैनल मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे किस कौन क्या मेन फोकस क्या है हमारा? अल्फा. That is why we can also write in short form, this will be maximum of HY minus H alpha with respect to all probability distribution of transmitter or X. Now, I will tell you about its derivation, कि how you derive the channel capacity for BEC, okay, कैसे निकालेंगे? तो मुझे पता है 0 and 1 are transmitted and they are received as 0, E and 1. हमने इनपुट तो दो ही दिए 0 और 1, बट आउटपुट में हमें 0, 1 और एक E, 3 मिल रहे हैं, 0, E and 1. The symbol Y indicates that due to the noise or another reason, no deterministic decision or correct decision can be made as to whether a received symbol is 0 or 1. हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, एंड Y इंडिकेट दैट आउटपुट इज इरेज्ड, लॉस हो गया, इरेज हो गया. वी आर टेक्निकली हियर वी आर यूजिंग दैट आउटपुट इज इरेज्ड, इरेजर चैनल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरेजर चैनल. So, let us assume P0 is equal to alpha and P1 is equal to 1 minus alpha at the transmitter, क्योंकि ट्रांसमीटर हमारे दो ही हैं 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है. तो यहाँ वही लेंगे हम, एक हमने लिया अल्फा और एक लिया 1 माइनस. सो एच एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपल सी बात है, अल्फा लॉग 1 बाय अल्फा, 1 माइनस लॉग 1 माइनस, एंड बेस ऑफ 2, बेस ऑफ 2. सिंस Px1 दो ट्रांसमीटर मैसेज है हमारे x1 x2, दिस इज अल्फा 1 माइनस अल्फा. नाउ Pxy हमको अगेन जैसे हमने BSC में किया था Pxy निकालना, Pxy इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? Px इंटू Py बाय x. अगेन यदि Pxy मुझे निकालना है तो इट विल बी मल्टीप्लाइंग बाय Py बाय x बाय Px. Px क्या? अल्फा और दिस. Py बाय x क्या होगा चैनल मैट्रिक्स यदि हम निकालें तो? हम यदि एक को P एक को Q ले लें, ठीक है, इट मीन्स दिस इज P and complement and reverse will be Q.
if we consider, then what will happen? This. So, it will be P Q 0, 0 Q P, ठीक है, इस तरह से हो जाए, मतलब हम इसमें देखें कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज P, दिस इज P and this is Q and this is Q. Then we can write its channel matrix this one in this P y by x. Now I x y हमें पता है, I x y के 3 फॉर्मूले होते हैं, आपको पता होना चाहिए, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन 3 फॉर्मूले होते हैं। एक क्या होता है हमारा एच एक्स प्लस एच वाई माइनस एच एक्स वाई। जनरली इसको हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमें जनरली मतलब होता है वाई बाय एक्स से, ठीक है, तो हम जनरली यूज कौन सा करते हैं, ये बड़ा इसमें तीनों चीज चाहिए जब जाके निकाल पाओगे आप, ये भी रीजन है, एच वाई माइनस एच वाई बाय एक्स। और एक क्या होता है, इट इज नेक्स्ट क्या होता है एच एक्स माइनस एच एक्स अपॉन वाई। अब इसका किसी का भी यूज हम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इसका करेंगे तो भी चलेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है। इरेज क्यों हो रहा है? ड्यू टू द लॉस इंफॉर्मेशन इनटू द चैनल। तो अब लॉस इंफॉर्मेशन हमेशा हम किससे देते हैं, ये हमेशा एच एक्स अपॉन वाई, मतलब एक्स अपॉन वाई जो है पी एक्स अपॉन वाई या एच एक्स अपॉन वाई ऑलवेज शोज द लॉस इंफॉर्मेशन इनटू द चैनल। तो एक्स अपॉन वाई हमको निकालना है, पी एक्स वाई हम निकाल लेंगे, भाई पी एक्स वाई कैसे निकालो, ये क्या हो गया, दिस इज पी वाई बाय एक्स एंड दिस इज पी एक्स, इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट पी एक्स वाई, सिंपली है। अब पी एक्स वाई खासियत क्या होती है, पी एक्स वाई से हम पी एक्स और पी वाई इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। तो पी वाई वन पहले कॉलम को जोड़ोगे पी वाई वन आ जाएगा, दूसरा कॉलम पी वाई टू हो जाएगा, तीसरे को जोड़ोगे, 3 कॉलम है ना, वाई वन वाई टू वाई थ्री, यू विल गेट दिस वन। नाउ पी एक्स वाई इजिकल टू क्या होगा, ये भी बेस हम लगा सकते हैं, पी एक्स अपॉन वाई इजिकल पी एक्स वाई अपॉन पी वाई। तो पी एक्स अपॉन वाई हमने यहाँ से निकाल दिया, क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एच एक्स अपॉन वाई निकालना है, हमें फॉर्मूला लगाना है, म्यूचुअल फॉर्मूला लगाना है एच एक्स माइनस एच एक्स अपॉन वाई। तो एच एक्स अपॉन वाई निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है फिर, पी एक्स वाई और पी एक्स अपॉन वाई चाहिए। तो एच एक्स अपॉन वाई यहां से निकाल लिया, अभी पीछे बताया था मैंने आपको, Q इजिकल टू 1 माइनस पी होगा, भाई उल्टे हैं ना दूसरे के। तो आई एक्स वाई इजिकल टू दिस, यू कैन पुट हियर दिस P इंटू एच एक्स, मैक्सिमम ऑफ म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। तो म्यूचुअल कितनी निकाली मैंने, पी एच एक्स का मैक्सिमम, P बाहर लो, मैक्सिमम ऑफ एच एक्स। एच एक्स का मैक्सिमम क्या होगा भाई, एच एक्स का मैक्सिमम क्या होगा, यदि यहाँ बाइनरी चैनल है, log 2m बेस ऑफ 2m और m बराबर यहाँ पे क्या है 2, हम 2 ही सिंबल तो लिए हमने, 0 या 1, यही तो लिया है। तो log 2 की बेस 2 इजिकल टू क्या होगा 1, तो log m क्या हो गया यहाँ पे, एच एक्स क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम एच एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो c बराबर क्या आ गया p। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द चैनल कैपेसिटी ऑफ बाइनरी इरेजर चैनल। सो दिस इज आल्सो सिंपल, बट हेयर एक ही डिफरेंस था बीएससी बीईसी में, यहाँ पे हमने एच एक्स अपॉन वाई के टर्म में लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो रही है तुम्हारी, है ना, और लॉस इंफॉर्मेशन ऑलवेज वी कैन रिप्रेजेंट बाय एच एक्स अपॉन वाई। ये एच एक्स अपॉन वाई का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कम्युनिकेशन में, इट शोज द इंफॉर्मेशन लॉस इनटू द चैनल। Okay, if you put here the formula and maximum value, you will get C is equal to P. These are my references, so you can use these references for covering the channel capacity of various binary channels. Okay, so in सब का हम use कर सकते हैं। So in this lecture, what I taught you about the various binary channels and their channel capacity calculation. कि हाउ यू कैलकुलेट द चैनल कैपेसिटी ऑफ वेरियस बाइनरी चैनल्स, कैसे हम उनको निकाल सकते हैं। तो वी टोल्ड यू अबाउट द चैनल कैपेसिटी ऑफ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल एंड बाइनरी इरेजर चैनल, एंड आल्सो आई टोल्ड यू अबाउट द डेरिवेशन ऑफ दोज फॉर बोथ द चैनल्स।
Similarly, you can also determine the channel capacity of another binary channels in this way. Thank you very much. Goodbye.